Yeah, remember that key we are taking what we are taking oath to duty. Again, I would like to write 2 or 3 points, only 2 or 3 points, oath to duty. And remember that key when you talk about this poem, it was composed in 1805 and published in 1807 in poems in 2 volumes. Second important point, it was composed just after the death of great military general of England, great military general of England, Nelson. Next point, in the poem, the poet glorifies those people who perform their duties honestly in society and community. Next point, it is based on Thomas Gray's hymn to Edward City. Hymn to So it is based on Thomas Gray's hymn to Edward City. Thomas Gray का एक पोयम रहा है, उस पर आधारित रहा है. In the poem poet has emphasized upon the duties performed in the world of nature. So in this way you find these points. किसी ने म्यूट नहीं किया है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, जो कुछ भी कोई कह रहा है. आई डोंट नो हु इज सेइंग समथिंग. जी, क्या किसी का कुछ कहना है, किसी की कोई क्वेरी है? So remember that we have taken what? We have taken Ode to Duty. It was composed in 1805 and published in 1807. It was composed in 1805, published in 1807. Poems in 2 volumes. It was composed just after the death of greatest military general of England, Nelson. उनके भाई की भी, वर्ड्सवर्थ के भाई की भी डेथ उसी समय हुई थी, जो कि एक सेलर थे. In the poem, the poet glorifies those people who perform their duties honestly in society, community, and nation building. What were the duties they had? It is based on Thomas Gray's ode hymn to Edward City.
In the poem, poet has emphasized upon the duties performed in the world of nature. In the poem, duty has been presented as Eastern daughter of God who does not forgive the idle people. The poet has emphasized upon the performing of duties. Oh my God, two times. The poet has emphasized upon the performing of duties in the world of nature. So in this way you find these points. You have to go with these points. You have to go with these points. I think you have noted it. Yes, sir. ओके, सबने नोट कर लिया है? Yes, sir. ओके, yeah. Now the next poem which we have to take, yeah, which we will go, that is what? That is a To the Cuckoo. To the Cuckoo. Remember that when you talk about this poem, there are certain things which you have to remember. सबसे पहला पॉइंट कि ये जो पोयम है टू द कुकू, इट वाज रिटन इन मार्च 1802. It was written in March 1802 and published in 1807. 1807 in poems in 2 volumes. As you find, this is what To the Cuckoo. So in this poem, cuckoo has been immortalized. इस पोयम में कुक्कू को इमोर्टलाइज किया गया. दैट्स नॉट ओनली अ वर्ड, बट अल्टीमेटली यू फाइंड दैट की अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्लेजर, ट्रैंक्विलिटी एंड यू कैन से कि स्वीट वॉइस का वहां से. इट्स अ पोयम ऑफ नेचर एंड शोज poet's love for cuckoo. Now the next point, hearing the voice of cuckoo. He remembers his school days. He remembers his school days when he was a child and first heard the melodious song of cuckoo
song of cuckoo amidst the leaves of trees and in hill. So these are the points which you have to remember. Now the next point, the bird cuckoo became a mystery for him because he could not see it but heard only its sweet voices. So these are the important points which you have to go. So in this way you find what? In this way you find कि it was written in March 1802, published in 1807. यहाँ पे in this poem cuckoo has been immortalized. It means that cuckoo has not been presented as only as a bird, but what is important? The melodious plot poured by cuckoo, that is important. The melodious plot poured by cuckoo, that is important because it attracts the poet. Poet gets what? Poet hears the sweet music, the sweet voices of the cuckoo, and he says what? He could not see it, and when he hears the melodious plot or the sweet voices of cuckoo, he remembers his what? Childhood days, when he was a child and first heard. So hearing the voice of cuckoo, he remembers his school days when he was a child and first heard the melodious song of cuckoo amidst the leaves of trees and in hill. The bird cuckoo became a mystery for him. Why it's a mystery for him? Because he could not see it. He could not see it, but heard only its sweet voices. So he wants to know ki how the cuckoo is, what is the shape of the cuckoo. It's a bird, but such a beautiful voice उसका अपना है. तो इस तरह से उन्होंने उसके लिए क्या किया? वो एक वैंडरिंग क्रिएचर है that doesn't stop at a party या stay at a particular place, but in spring कभी यहाँ पर तो कभी हिल पर, कभी पेड़ों की पत्तियों के बीच में, लेकिन उनको याद है he has heard. तो अगर if you remember your own days, early childhood days, you find that you have heard these
beautiful words of cuckoo. But when you came in cities, in town area, you find only what? You find only the materialistic life, only horn pressure of motor car, and you can say कि टू व्हीलर का इन सब का उन्होंने लाइफ कितना चेंज किया. सो यू कैन जस्ट सी कि उन्होंने क्या क्या बताया. आई थिंक कि आपने कर लिया, इसे इरेज कर दे. जी Yes, सर, sir. हो गया. ओके. Yeah, now remember that कि there are some lines which I want to read here, और वो लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको मैं अगली पोयम कवर करूंगा. उसमें से कुछ लाइनें हैं जो हमें आपको सबको पता होना चाहिए, जो किताब में दी गई है उसी लाइन को मैं आपके सामने रिसाइट करूंगा या उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. कुछ है इंपॉर्टेंट चीजें. जैसे उन्होंने कहा कि ओ ब्लाइथ न्यू कमर, देयर इज अ वर्ड न्यू कमर. तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो ये वर्ड आ रहा है ब्लाइथ न्यू कमर, इट्स फॉर whom? Is for the cuckoo. And why the newcomer? Because it's like the new guest. यह एक तरह से जब स्प्रिंग में आती है, हमेशा वो नहीं है, वह न्यू गेस्ट है. दैट कम्स इन स्प्रिंग, एंड इन स्प्रिंग द पोएट हियर्स द मेलेडियस प्लाट. स्प्रिंग में ही पोएट को क्या होता है कि वह मेलेडियस प्लाट सुनाई पड़ता है. दिस इज व्हाई ही सेज दैट. व्हाट डज ही से? ही सेज दैट कि ओ ब्लाइथ न्यू कमर, ओ ब्लाइथ न्यू कमर. देयर इज अ वर्ड ओ ब्लाइथ newcomer. So this newcomer, it refers to whom? It refers to कुक्कू. कुक्कू के लिए है कि कुक्कू उनके नजर में क्या एक गेस्ट है. क्यों गेस्ट है? Because you don't see या you don't find the presence of cuckoo in each and every one. Especially it comes in spring season. As spring passes, it leaves the place. This is why it's like the newcomer are a guest. उसके बाद उन्होंने कहा what does he see? He says I have heard. मैंने तुम्हारी आवाज को सुना है. I have heard. Remember that he has heard the sweet voices of cuckoo in when he was child. Especially he remembers his school days. कि in amidst the leaves of trees and in hill he has heard. Then he remembers those school days. He says that it's not the first time that I'm getting your sweet voice. Even in my school days I have heard. मैंने तुम्हारी खूबसूरत आवाज को स्कूल डेज में भी सुना है. अब उस समय लता मंगेशकर नहीं रही होंगी, नहीं तो वो चीज उन्होंने एक ब्यूटीफुल पोयम लिखा होता. सो आई हैव हर्ड, आई हैव बी एंड रिजॉइस. नॉट ओनली आई हैव हर्ड, ही आल्सो सेज कि आई हैव बी. आई हैव बी का मतलब मैं हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हें देखना चाहता था, या तुम्हें जो है तुम्हारी आवाज को हमेशा सुनना चाहता था. आई वॉन्ट टू टेक इट, और मैंने इसको हमेशा रिजॉइस किया. आई हैव बी, आई वॉज ऑलवेज विद यू, आई हैड बीन विद यू. मैं हमेशा आपके प्रेजेंस को मैंने महसूस किया, आपकी आवाज को मैंने महसूस किया, और मैंने महसूस किया कि आपकी जो आवाज है यह एक तरह से क्या है, फाउंटेन हेड ऑफ म्यूजिक है, स्वीट टोन है, मेलोडियस प्लॉट है. एंड यू हैव एंजॉयड नॉट ओनली मी बट ऑल द पीपल. अगर आपने देखा होगा ओ टू नाइटिंगेल में जॉन कीट्स भी यही बात करते हैं, वहां कुक्कू की जगह नाइटिंगेल है. सो उन्होंने कहा कि आई हैव दी एंड रीजॉइस एंड आई हैव एंजॉयड दोज वॉइसेस, स्वीट वॉइसेस या मेलोडियस प्लॉट पोर्ड बाय यू. आई हैव रिजॉइस्ड इट. फर्दर ही सेज थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग. डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, थ्राइस वेलकम, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ. डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो ध्यान में रखिएगा. अगर कभी ये आता है कि डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग किसके लिए उन्होंने किया, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, दिस डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग मींस फॉर हूम, फॉर कुक्कू. तो उन्होंने कहा कि थ्राइस वेलकम, मैं आपका वेलकम करता हूं, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग. इवन येट दाउ आर टू मी, इवन येट दाउ आर्ट योर मेलोडियस plot, your sweet voice. It's the art which I found only in you. Such an art can't be seen anywhere. Even yet thou art to me no bird but an invisible thing. मैं तुम्हें बर्ड के रूप में नहीं देख रहा हूं, बल्कि एक इनविजिबल. यही जो वर्ड है इनविजिबल, यही उनको इस चीज को मिस्टीरियस बना देता है कि you are not only a bird. In your voice there is the voice of God.
in you there is what, in you there is divinity, there is a celestial beauty। अगर आपको याद होगा कि नेचर के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को उन्होंने बहुत महत्व दिया, जैसे उन्होंने कहा कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि I have I have thee and rejoice. Further, he says, what does he say? He says, even yet thou art to me no bird, but an invisible thing, a wise, a mystery. यह अपने में आवाज ही नहीं, ये एक आवाज तो है, लेकिन यह मिस्टीरियस है। I want to discover who is behind this voice. I not only I don't want to take you only as a bird, ki you are the petty objects of nature. No, not at all. You are the beautiful creativity of God. And behind you, behind your sweet voice, there is some unseen power. An unseen power who regulates the whole world. An unseen power whom Wordsworth addressed as nature. An unseen power whom you and I address as God, who is omniscient, omnipotent, and omnipresent, who is the King of Kings, Emperor of Emperors, one who regulates the whole universe. So हमेशा मैंने बताया कि चाहे ड्यूटी की बात रही हो, चाहे कुक्कू की बात रही हो, वर्ड्सवर्थ ने उसको नेचर से जोड़ा, उनका जो दर्शन है वहीं जाके पहुंचता। दैट इज द सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ दिस पोएम। अगेन ही सेड, ओ ब्लेस्ड बर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने कहा कि यू आर अ ब्लेस्ड बर्ड। आप ये बताइए ब्लेसिंग किसको मिलती? हम सारे लोग ये कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, वो ब्लेस्ड बर्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ब्लेस्ड बर्ड। तो हम लोग ये क्या कहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। कभी एक नहीं कहा जाता किसी के साथ कि ये सेंटेंस बोला जाए कि मे एनी लीडर ब्लेस यू, मे एनी कैबिनेट मिनिस्टर ब्लेस यू, मे एनी फिलोसफर ब्लेस यू। ब्लेसिंग जो है, ब्लेसिंग्स यू फाइंड वेयर, ब्लेसिंग्स यू फाइंड इन द हैंड ऑफ ओनली गॉड। एक आदमी या एक इंसान दूसरे के लिए दुआ कर सकता है, उसको ब्लेसिंग नहीं दे सकता, ब्लेसिंग्स नहीं दे सकता। ब्लेसिंग्स इज ओनली वेयर इन द हैंड ऑफ गॉड। दिस इज व्हाई गॉड इज गॉड। उसके सामने सब झुकते हैं, जो हमें दुआ देते हैं वो भी झुकते हैं, क्योंकि इंसान एक दूसरे की दुआ कर सकता है। दुआ किससे कर सकता है? उस ईश्वर से ही कर सकता है, एक दूसरे की भलाई के लिए। लेकिन ब्लेसिंग तो उन्होंने इसके लिए भी कहा कि यू आर अ ब्लेस्ड बर्ड। दिस शोज दैट कि स्पेशल ग्रेस ऑफ गॉड इज ऑन यू या इज विद यू, बिकॉज सच अ ब्यूटीफुल वॉइस डिडेंट सी, डिडेंट फाइंड, डिडेंट हर्ट। ऐसा नहीं कि हर वर्ड में यह चीज है। तो ये बात उन्होंने कही, ओ ब्लेस्ड बर्ड। The earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee। जिस अर्थ पर वी पेस हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं, यह जो अर्थ है यह एक लगता है दोबारा फेरी लैंड बनने जा रहा, और यह एक खूबसूरत जगह है जहां पे कि तुम्हारा निवास स्थान हो सकता है। तो वर्ड्सवर्थ का, अगर आपको याद होगा, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में उन्होंने एक बात कही थी कि ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जब वो इन सब चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, grace of God, blessings of God are with us, and we can regain those blissful days which we have enjoyed in our early childhood. So in this way, this is not only a bird but a blessed bird। This is why I said कि what you find कि उन्होंने word use किया है कि the bird has been immortalized, उसको immortalize किया गया। तो this is a very remarkable point which you have to remember। Now the next point which we have to take, that is what, that is the rainbow। Next point which we have to take, that is what, that is the rainbow। The rainbow, this is another important point and you will come to know कि इसका जो सब टाइटल है द रेनबो का, that is what कि are my heart leaps up। It has an other title, my heart
लीप्स अप, ये चीज पूछी जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माई हार्ट लीप्स अप, इट हैज अ ब्यूटीफुल philosophical line, child is the father of man, child is the father of man. It has a beautiful philosophical line, child is the father of man. This is another important point. Now the third point which you have to go, it's a lyric composed in 1802 and published in 1807. Published in 1807. Next point, in the poem, rainbow is an object. Rainbow is an object of Rainbow is an object which provides pleasure. Which provides pleasure. Next point, जो ये लाइन है आपका, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये वो डन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में भी यूज किया गया, द प्रील्यूड में भी यूज किया गया है। तो यहाँ पे कोई ये बताने की जरूरत है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको लेकर के। द पोयम अनफोल्ड्स Wordsworth's love for nature. In the poem, poet observes the meanest object of nature and tries to get the beauty of nature in the form of mysticism and optimism. This is another point which you have to remember. Mysticism and optimism.
Yeah, if you go, yeah, please let me know. पहला पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, माई हार्ट लीप्स अप. It has been a beautiful philosophical line, child is the father of man. ये दो पॉइंट आपको नहीं भूलना. रेनबो इज एन ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड्स प्लेजर. ऊपर की दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. Yeah, have you done it? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सब लोगों ने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई विल टॉक ओनली वन पोएम, और एक पोएम और कवर कर ले. Now the next poem is To a Skylark. Skylark. Remember that when you talk about this poem, there are certain things which you have to follow या which you have to go. उनमें से एक सबसे important चीज है कि it was written in 1825 at Rydal Mount. It was written in 1825 at Rydal Mount. And published in 1827. And published in 1827. Like cuckoo, the bird skylark has been praised and immortalized. तीसरा, it's in sonnet form. It describes the peculiar characteristics
of the bird. It describes the peculiar characteristics of the bird. The poet feels the presence of celestial beauty or divinity in the melodious plot of the bird. In the melodious plot of the bird. Like other poems, she remarks nature, the controller of the universe. Universe and the maker of each and everything. Each and everything. So note down. सो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि सोनेट फॉर्म एक चीज ध्यान में रखना है, कुकू द बर्ड दोनों में सिमिलरिटी है, उसको एडमायर किया गया। द बर्ड फील द प्रेजेंस ऑफ सेलेस्टियल ब्यूटी ये है, और एक टेबल कराना पड़ेगा कि इसके ऊपर किन लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है और किन लोगों ने इसको लेकर के बात किया। Yeah, let me know if you note it. Yes, sir. Okay. ओके, सभी ने कर लिया है? No, sir. चीजें विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं विजिबिलिटी में? Yes, sir.
Okay, now I hope you all have noted it. Yes, sir. Yeah, just try to गेट की और बर्ड्स के ऊपर कि लोगों ने क्या पोयम लिखा है उसका एक चार्ट वहां पे भी दिया हुआ है, लेकिन जब हो रहा है तो यहाँ पे बना दो। एक आपको चार्ट तैयार करना है कि पोएट पोयम, किन लोगों ने कौन कौन सा किया है। जॉन मिल्टन ऑन नाइटिंगेल, ऑन नाइटिंगेल। दूसरा या हेलो सर। जी मैडम। सर जब जॉन मिल्टन को पढ़ा था सर, उस टाइम जॉन मिल्टन में टू द नाइटिंगेल है सर उनकी पोयम का नाम। जॉन मिल्टन में जब हम लोग पढ़े थे टू द नाइटिंगेल आया था। यस सर, उसमें टू द नाइटिंगेल आया था। अगर बट मैं टू यही होगा तब तो, कंफ्यूजन। अगर देखिए अगर टू रहा होगा इट मींस दैट कि उन्होंने ओड के फॉर्म में लिखा। अगर आन की बात चल रही तो इसका मतलब उन्होंने सोनेट फॉर्म में उसको लिखा हुआ है। अब अगर इस तरह से टू और आन प्रीपोजिशन का फर्क है तो उसको एक बार फिर से रीचेक करना पड़ेगा। यहाँ पे इससे सर्किल कर लीजिएगा। अलेक्जेंडर पोप का, अलेक्जेंडर पोप का द नाइटिंगेल, थर्ड पॉइंट जॉन कीट्स का ओड टू अ नाइटिंगेल, फोर्थ पॉइंट रॉबर्ट ब्रिज टू अ नाइटिंगेल, टू अ नाइटिंगेल, NIGSTINGALE। Now the fifth is P.B. Shelley ode to a Skylark, P.B. Shelley ode to a Skylark। Six, William Wordsworth to a Skylark। To a Skylark। Seven, Thomas Hardy Shelley's Skylark। और हाँ एक चीज है कि उस दिन रकीम जी ने कहा था कि जो उन्होंने स्थान बदला था, रकीम जी का आंसर राइट था। वो 1803 की जगह 1813 ही है, वो सही था। 3 वहां पे टाइपो एरर है, उसको जो है सारे लोगों ने पोस्ट भी आया था रकीम जी का, उन्होंने स्क्रीनशॉट उसका लेकर के किया था या जो कुछ भी, तो वो 1813 ही सही है। अब एक चीज ये आन नाइटिंगेल वाला सर्किल, उस दिन वाला सर्किल का तो जो चेक किया गया था उसमें जो है रहा था। Sir, I think, sir, I've also read that to a Nightingale. अच्छा, टू और नाइटिंगेल, अगर टू होगा तो आप इसे कर लीजिएगा। ये चूंकि केवल प्रीपोजिशन की यहाँ पे बात है कि आन है या टू है, कोई ऐसा नहीं है। यू कैन जस्ट चेक इट, आई विल आल्सो चेक इट कि वेदर इट इज टू और नाइटिंगेल और आन नाइटिंगेल। अगर होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज जो है थोड़ा सा टाइपो एरर है। बाकी और चीज अपनी जगह सही है। खास करके पीबी शेली का ओ टू आई स्काईलार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रिज का टू अ नाइटिंगेल, ये चीज पूछा जा चुका, रॉबर्ट ब्रिज वाला। जॉन कीट्स का ओ टू अ नाइटिंगेल, तो
दोनों में अब जैसे अगर जॉन मिल्टन का टू नाइटिंगेल रहा है ना, आप लोग बता रहे सर हैं, अगर जॉन मिल्टन का टू द नाइटिंगेल, ओके, अगर टू द नाइटिंगेल है तो टू द नाइटिंगेल और टू अ नाइटिंगेल, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होगा, ये चीज ध्यान में रखें। रॉबर्ट ब्रिज का टू अ नाइटिंगेल, वहां पे टू द नाइटिंगेल जैसा आप लोग बता रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का टू आई स्काईलार्क, शेलीज का, थॉमस हार्डी का शेलीज स्काईलार्क, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। लेकिन इनमें से मैं बता दूं सी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहा है वो टू अ नाइटिंगेल, टू अ नाइटिंगेल, टू अ स्काईलार्क, ओ टू अ स्काईलार्क, ये चार आपको जब भी पूछा गया इन्हीं चारों में से, अलेक्जेंडर पोप वगैरह का नहीं आया, मिल्टन का भी नहीं आया है, हार्डी का भी नहीं आया, लेकिन इन चारों का पूछा गया। जॉन कीट्स का ओ टू अ नाइटिंगेल, रॉबर्ट ब्रिज का टू अ नाइटिंगेल, पीबी शेली का ओ टू अ स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ का टू अ स्काईलार्क। वैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए जिसमें इतना मतलब नजदीक मामला हो, या इस तरह का कंफ्यूजन की थोड़ा सा दा का, आ का, या प्रीपोजिशन टू का आना नहीं चाहिए, बट पूछा जाता है, क्या किया जाएगा, तो उसमें ये सब चीजें रही। तो इन दिस वे वी हैव डन टुडे, वी हैव टेकन 4 शॉर्ट पोएम्स। और मैं बता दूं कि मॉर्निंग सेशन में जो मैंने कवर किया है, मॉर्निंग सेशन में मैंने, फिर से मैं बता दूं कि हो सकता है आपके पास वीडियो गया भी हो, आई हैड गॉन विद द सॉलिटरी रीपर और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और इसके अलावा आई हैड टेकन मिल्टन, जिसमें मिल्टन की कुछ लाइनें मैंने एक्सप्लेन किया था, सॉलिटरी रीपर का भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था। तो यू कैन जस्ट गो ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू कैन जस्ट सी, और वहां से आप नोट कर सकते हैं, कवर करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग दोनों जगह वर्ड्सवर्थ चल रहा है। 2-3 क्लासेस, मुझे लगता है 2 क्लासेस 3 क्लासेस में वर्ड्सवर्थ फाइनल हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली टीजीटी का वी आर अबाउट टू फाइनलाइज आथर, खास करके 3 आथर हो जाएंगे, और हम लोगों ने काफी बेहतरीन ढंग से, काफी डिटेल्ड स्टडी के साथ हम लोगों ने बात की है, बहुत कुछ जो है लाइनें या पोएम को भी लेके आओ, तमाम चीजें। लेकिन फिर भी मैंने लोगों से कहा कि जो उनका सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, और लंदन या मिल्टन 1802 है, उसकी लाइनें खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें। ठीक, ओके, इसलिए Thank you, sir. जी जी। सर ये जो द टू वर्ल्ड इज टू मच विद अस आपने सुबह पढ़ाया था, इसमें एक जी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात थी, तो उसको वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज किया है मिल्टन ने? वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज किया, वो वहां पे अच्छा, टाइप उसको लिखने में मार्कर हाँ से बाय गलत मिस्टेक हुआ था, आपसे वो सर, हाँ वर्ड्सवर्थ आना मिल्टन चाहिए लिखा था। गया हाँ, था। जी हाँ, सर। मिल्टन वहां पे, बल्कि बाद में 1-2 लोगों का और भी आया था, तो हमने कहा नहीं वहां पे 1802, ठीक है।